Welcome to you all in this third session of pay fixation in central government. Those who have not watched my earlier videos, they are requested to watch those videos available in the YouTube because this is essential for the purpose of maintaining the continuity in the understanding. Many of the concepts like technical resignation, like pay fixation, pay fixation at date of next increment, pay protection, these things I have explained in previous videos and that I'm not repeating. So those who have not watched may face difficulty in understanding the same. I'm starting the current session. So this is the current session. In this session, we will be covering these topics: pay fixation after re-employment, movement from government to public sector and vice versa, that is public sector to government sector, advance increment, compensatory allowance, and other related topics. Pay fixation after re-employment. Before understanding this, we have to consider, we have to make our concept clear over how the person was relieved from his ex organization. क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है रीएम्प्लॉयमेंट के बाद पे फिक्सेशन में, सो हमको क्लियरली ये समझना पड़ेगा. This removal may be after superannuation when the person has completed his maximum age of service. This might be in some organization, still it is 58, somewhere 60, 62, 65, whatever it was. If before superannuation a person has left his organization, this is called retirement. And retirement covers voluntary retirement, technical resignation, where a person maintains his lien, applies through proper channel, and properly relieved from his parent organization to join an ex-organization. That I have explained in my previous videos. Whether he has been removed from the last service or he has resigned. Technical resignation and resignation are two different things. Whether he has resigned, यहाँ पे lien वगैरह नहीं involve है. So all those cases जहाँ की वो person before superannuation service को छोड़ रहा है, that is considered as retirement. This definition has been mentioned in pension portal of government. सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन पोर्टल है, वहां ये दोनों डेफिनेशन मेंशन किए हुए हैं, सुपर एन्युएशन एंड रिटायरमेंट के, एंड दैट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड. This is, you can say, the master slide which explains the how pay is fixed after re-employment. Completely सारे के सारे केसेस इसी के बेसिस पे डील होते हैं. If a person is superannuated, उसका जो अपने एक ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद पे फिक्सेशन होता है, दिस इज सिंपली इन द शेप ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज लास्ट ड्रॉन पे. अगर ये आपको याद है कि हिज लास्ट ड्रॉन पे इन द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोटेक्टेड इन द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, वहां किसी लेवल पे उसका पे नहीं फिक्स होता है, किसी स्टेज को नहीं कंसीडर किया जाता है, सिंपली उसके लास्ट ड्रॉन पे को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है. सो क्या होगा लास्ट पे बिफोर सुपर एन्युएशन, और उसमें से वो आदमी जितना पेंशन पा रहा होता है दैट इज डिडक्टेड एंड हिज पे इज फिक्स्ड इन द एक्स कैडर, नेक्स्ट डिपार्टमेंट. यहां पे डीआर जो है उसको पेंशन, मैंने डीआर ओवर दिस, यानी कि पेंशन के ऊपर डीआर मिलता रहता है उस आदमी को. जो पे उसका फिक्स होता है, पेंशन पे तो डीआर मिलता रहता है. डीआर मीन डियरनेस अलाउंस ऑन पेंशन, डियरनेस रिलीफ इसको कहते हैं. ये तो पेंशन पे मिलता रहता है, लेकिन जहां पे उसका जिस ऑर्गेनाइजेशन पे फिक्स होता है इस फॉर्मूला को लगाने के बाद, वहां न तो उसको कोई फ्यूचर इंक्रीमेंट मिलता है, एट द सेम टाइम ही इज नॉट इंटाइटल्ड फॉर एनी अलाउंस, यानी डियरलेस अलाउंस, हाउस रेंट, कन्वेंस अलाउंस, नथिंग एक्स्ट्रा ही इज इंटाइटल्ड टू. If a person is removed from the organization or if he has resigned, this is the case number 2. If he resigns, then what happens? Naturally, the person will not get his pension, and
If he is not getting the pension, there is no question of any kind of deduction from his pay. यहाँ इस केस में जिस भी लेवल पे उसका प्लेसमेंट करते हैं, मिनिमम ऑफ द स्टेज पे उसके पे को फिक्स कर देते हैं, यानी स्टेज 1 पे उसके पे को सिंपली फिक्स कर देते हैं. एंड ही इज इंटाइटल्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ अलाउंसेस ओवर दिस पे स्टेज 1 पे उसको सारे अलाउंस मिलते रहेंगे. थर्ड केस, if a person left an organization after technical resignation, अगर टेक्निकल रेजिग्नेशन के साथ वो छोड़ रहा है तो दो केसेज इमर्ज करते हैं. एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन विद टेक्निकल रेजिग्नेशन, वो ग्रुप ए पोस्ट पे काम कर रहा था और नॉन ग्रुप ए पोस्ट पे काम कर रहा था. अगर ग्रुप ए पोस्ट पे काम कर रहा था तो पे फिक्सेशन अलग होगा, नॉन ग्रुप ए पे कर रहा था तो पे फिक्सेशन अलग. यदि पर्सन ग्रुप ए पोस्ट पे काम कर रहा था तो उसका जो पे फिक्स होगा, दिस विल हैव 3 कंपोनेंट्स. द फर्स्ट कंपोनेंट इज पेंशन विदाउट डीआर. पेंशन पे डियरनेस रिलीफ नहीं मिलेगा. द सेकेंड इज पे लेस विद पेंशन. उसका जो भी पे वहां पे फिक्स होगा. और हम ध्यान देंगे, मैंने पहले बताया है, टेक्निकल रेजिग्नेशन पे जब एक आदमी एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे पे ज्वाइन करता है तो उसका पे प्रोटेक्ट होता है. पे प्रोटेक्ट प्लेसिंग हिम टू द हायर स्टेज भी हो सकता है, पर्सनल पे के शेप में भी हो सकता है. तो पे प्रोटेक्शन मैं बता चुका हूं, उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं यहां में. तो ये पे प्रोटेक्ट होगा उसका, और पे प्रोटेक्ट होने के बाद जो पे आ रहा होगा उसमें से पेंशन को माइनस कर देंगे. He will draw his DA and allowance on original pay. Original pay जब मैं यहाँ कह रहा हूं, this original pay mean this pay. इस पे उसको सारे के सारे अलाउंस मिलते रहे. अगर वही 55 ईयर एज से पहले वो आदमी उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहा है, ये हो गया 55 ईयर एज के बाद यदि छोड़ रहा है. 55 ईयर एज के पहले छोड़ रहा है, अगेन देयर आर 3 कंपोनेंट्स. So there is no change in component number 1 and component number 3. ये देखिए, लेकिन component number 2 में एक ignorable portion of pension include हो गया है. क्या होता है ये? There is a provision that if a person leaves an organization before the age of 55, ज्वाइनिंग के समय कोई भी एज हो, वो आफ्टर भी हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते समय यदि उसका एज 55 ईयर्स से कम था, इन दैट केस पर्सन का जो पेंशन माइनस किया जाता है, उसका जो पे वहां पे पे प्रोटेक्शन के साथ एक कैडर में एक ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स होता है, उसमें से जो पेंशन माइनस किया जाता है उसमें 15,000 रुपीज का रिलैक्सेशन मिलता है. सो 15,000 रुपीज का पेंशन कम डिडक्ट किया जाता है. सो कहने का मतलब है 2 persons with drawing same pension and joining at same scale, that is same stage पे उनका अगर फिक्सेशन हो रहा है, वो इस केस में भी कंपोनेंट 2 में अगर उसका एज 55 ईयर्स से कम है तो ही विल बी गेटिंग 15,000 रुपीज मोर. इस कंपोनेंट में उसको ज्यादा मिल जाएगा अगर वो 55 ईयर से पहले टेक्निकल रेजिग्नेशन देता है. तो ये एक समझने की बात है, एग्जांपल से देखेंगे क्लियर हो जाएगा. यदि नॉन ग्रुप ए पोस्ट पे था बिफोर लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन, इन दैट केस आल्सो देयर आर 3 कंपोनेंट. ही विल गेट पेंशन विद डीआर. ये हम ध्यान देंगे कि यहां उसको पेंशन डीआर के साथ मिलेगा. पे एट द लोएस्ट स्टेज, यहां कोई पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा. पे उसका हमेशा लोएस्ट स्टेज पे जाके फिक्स हो जाएगा, जिस लेवल पे उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है. एंड डीए एंड अलाउंस उसको एज सच मिलता रहेगा. सो कहने का मतलब है इस सिस्टम में जहां पर कि वो नॉन ग्रुप ए पोस्ट पे काम कर रहा है, पेंशन विद डीआर मिलता रहता है और उसका फ्रेश अपॉइंटमेंट मान लिया जाता है विदाउट कंसिडरिंग कि वो पहले सर्विस में भी था. बहुत सिंपल सी चीज है. अगर कंसीडर ही नहीं करेंगे कि पहले वो सर्विस में था, तो जिस लेवल पे कंसीडर कर रहे हैं उसके मिनिमम पे ऑलरेडी वो जाके फिक्स हो जाएगा, और जैसे उसको पेंशन और उस पर डीआर मिल रहा था वो अपना मिलता रहेगा. यहां उसको डीए भी मिलता रहेगा न्यू पे. सो दिस इज द पैटर्न. इसमें पे फिक्स होता है आफ्टर री एम्प्लॉयमेंट. अब हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं. पे मैट्रिक्स मैंने एक बार फिर से कंसीडर किया है, दैट वी विल बी यूजिंग.
दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे है कि a government servant superannuate with last salary this much and this stage and pay level this. His pension was fixed on this. After superannuation, he joins the new organization on this date. Before retirement, his DNI was this date. Fix his pay with DA. यहाँ पे पहले जो मेरे वीडियोस हैं उसमें जो टेबल मैं यूज कर रहा था या जो पैटर्न मैं यूज कर रहा था, कुछ चेंजेस हैं, आप कंपेयर करके नोटिस करेंगे। कुछ कॉलम्स बढ़े हैं यहाँ पे, कुछ एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन एनालिसिस का ये पोर्शन है, जो नए हैं उनके लिए बता दूं, क्वेश्चन एनालिसिस के पोर्शन में भी एक आध लाइन पहले वाले से ज्यादा ऐड हुए हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ री एम्प्लॉयमेंट कैसे आफ्टर सुपर एन्युएशन। एज क्या था, एज क्या था, सुपर एन्युएशन एज था, रिटायरमेंट था ही नहीं, बेसिकली ये सुपर एन्युएशन था, तो सुपर एन्युएशन का एज था। ग्रुप ए सर्विस में था, रिटायर होने से पहले पे लेवल 11 था। डीए उसको नहीं मिलेगा बिकॉज सुपर एन्युएटेड था। डीएनआई नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस, ठीक है। सो यहाँ पे फिक्सेशन कैसे हो, यहाँ पे फिक्सेशन होगा इस पैटर्न में कि व्हेन ही वाज सुपर एन्युएटेड ही वाज ऑन पे लेवल 11, हिज लास्ट पे वाज दिस मच, हिज पेंशन वाज जस्ट हाफ ऑफ दिस। कोई जरूरी नहीं है कि हाफ हो, जो जब पे फिक्सेशन आप रिटायरमेंट बेनिफिट जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो एक्सप्लेन करूंगा, नॉट एसेंशियली हमेशा हाफ हो, कई बार एवरेज पे में कुछ और भी निकल आता है। सो लास्ट पे पर जो पेंशन फिक्स हुआ इतना था, डीआर उसको जब वो आदमी सुपर एन्युएट किया इस पेंशन पे मिल रहा था। आफ्टर री एम्प्लॉयमेंट हिज पे विल बी फिक्स्ड, जब उसका पे फिक्स होगा, जब उसका पे फिक्स होगा तो किसी भी पे लेवल पे नहीं होगा, किसी भी पे लेवल पे नहीं होगा, सिंपली जो पेंशन वो पा रहा था पाता रहेगा, डीआर जो उस पे मिल रहा था मिलता रहेगा, उसका न्यू पे जो फिक्स होगा दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ द टू, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो उसका न्यू पे हो जाएगा। एंड कोई भी डीए और कोई भी अलाउंस उसको इसके ऊपर नहीं मिलेगा। सो इन दिस पैटर्न पे ऑफ अ सुपर एन्युएटेड पर्सन इज फिक्स्ड। नेक्स्ट, अगर पर्सन टेक्निकली रिजाइन किए हुए हैं before the age of 52 and joins a government organization as re-employed person on this date in pay level 10, his salary was this much, stage 9 in pay level 8, so higher salary पे जा रहा है, his pension was this much, DNI new जो old parent organization में था ये था, fix his pay and DA। यहाँ पे देखिए टेक्निकल रेजिग्नेशन के साथ वो पर्सन ज्वाइन कर रहा है, बिफोर सुपर एन्युएशन के एज से पहले है, 52 ईयर्स है, वी कैन राइट डाउन 52 ईयर्स ऑल्सो। इसको देने का मतलब था कि टेक्निकल रेजिग्नेशन में यदि ग्रुप ए सर्विस में है तो उसका एज क्या है, लिखने का मेन पर्पज ये है। अगर वो 52 ईयर्स एज पे है और यहाँ पे देखिए नॉन ग्रुप ए सर्विस से मूव किया है तो उसको बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। कौन सा बेनिफिट, इग्नोरेबल पोर्शन ऑफ पेंशन वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा उसको। सो वेदर डीए इज अलाउड ऑन पे फिक्स्ड, यस उसको डीए तमाम अलाउंस की बेनिफिट मिलती जाएगी। वेदर डीएनआई इज एप्लीकेबल बाय न्यूली ज्वाइंड ऑर्गेनाइजेशन, यस डीएनआई उसको मिलता रहेगा, लेकिन सॉरी डीएनआई उसका न्यू पे फिक्सेशन वाला ही कंसीडर होगा, डीएनआई बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि बिकॉज वो हायर पे जा रहा है तो पास्ट में की हुई सर्विस उसके अगले पे फिक्सेशन में के डीएनआई को डिसाइड करने में, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट को डिसाइड करने में कंसीडर नहीं होगी। ऑफ कोर्स उसको पे प्रोटेक्शन मिलेगा, ऑफ कोर्स पे प्रोटेक्शन मिलेगा उसको। तो यहाँ पे हम देखें कैसे है, वो रिटायर किया है, पे लेवल 8 था, लास्ट पे वाज दिस, हिज पेंशन वाज दिस, और इस पेंशन पे उसको डीआर मिल रहा। जब वो रीएम्प्लॉयड हुआ ऑन दिस डेट, ऑन दिस डेट हैज अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस, दैट व्हाई आई हैव मेंशन्ड दिस, sorry, typing error is here, this is 23, this is 23, this is 23। so इस डेट को, so पे लेवल 10 में उसका हम पे फिक्स कर रहे हैं, he will be drawing the pension, ठीक है। डीआर allowed by the
पेंशनिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्या पेंशनिंग ऑर्गेनाइजेशन से उसको डीआर मिलेगा? तो यहाँ पे मैं दो चीजें आपको बताऊं, दो चीजें बताऊं। ये इसके पर्सन को एक ऑप्शन लेना पड़ता है कि क्या वो अपना डियरनेस का क्लेम कहां से लेगा, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से लेगा या न्यू ऑर्गेनाइजेशन से लेगा, ये उस पर्सन पे डिपेंड करता है, लेकिन दोनों जगह से उस पर्सन को नहीं मिल सकता है। सो इन जनरल इट इज आवर जॉब कि लोग अपने न्यू ऑर्गेनाइजेशन से ड्रॉ करते हैं, और चूंकि वो अपने न्यू ऑर्गेनाइजेशन से ड्रॉ करते हैं तो दिस ऑप्शन विल बी जीरो हियर नाउ, एंड इन दैट केस उसका न्यू पे जो फिक्स होगा उस पे वो पर्सन डीए की बेनिफिट लेगा, डीआर की बेनिफिट को फॉरगो कर देगा। सो जो पे फिक्स होगा उस पर पूरा लेगा। लेकिन यहां पे देखें ये 56,100 कैसे आया है? 56,100 यदि हम टेबल में देखें तो पे लेवल जहां पे कि उसका पे फिक्स हो रहा था 10 पे लेवल 10 पे 56,100 फर्स्ट स्टेज का पे। So his pay is fixed at the minimum of the stage because वो ग्रुप बी सर्विस से यहां से वहां मूव किया है, एंड बिकॉज वो ग्रुप बी सर्विस से यहां से वहां मूव किया है, सो उस पर्सन को इस पर डीआर भी अलाउ होगा। अगर ग्रुप ए सर्विस से मूव किया हुआ होता तो उसको केवल यही चीज मिल रही होती, लेकिन वो ग्रुप बी सर्विस से चूंकि वो आदमी यहां से मूव किया है, सो हियर ही विल बी अलाउड दिस थिंग डीआर। सो उसको डीआर भी यहां पे परमिटेड होगा। सो दैट द केस हियर, उसको अपने एक ऑर्गेनाइजेशन से पेंशन मिलता रहेगा, उस पर डीआर मिलता रहेगा, एंड अपने न्यू ऑर्गेनाइजेशन पे जो सैलरी फिक्स हो रही है वहां पर वो डीए लेता रहेगा। अगर यही केस ग्रुप ए सर्विस का हो जाए, वॉट एवर द अमाउंट कम्स आउट टू बी, तो उसको ये डीआर सीज हो जाएगा और ये मिलता रहेगा। अदरवाइज ही कैन ऑप्ट डीआर हियर, तब उसको डीए पर वो बेनिफिट नहीं मिलेगी। ठीक है, अदर अलावेंसेज जो है उसको हमेशा दोनों केस में जो पे फिक्स हो रहा है उसी पे मिलता रहेगा। थर्ड एग्जांपल देखिए, अ गवर्नमेंट सर्विस सबमिट्स टेक्निकल रेजिग्नेशन एट द एज ऑफ 52, एट द एज ऑफ 52। ठीक है, 52 के एज में वो सबमिट कर रहा है। सो बिफोर सुपर एनुएशन है और 52 के एज में joins a new organization and re-employed pension or did that on pay level 13. Before that, he was in pay level 12 and was drawing this much amount. So he was on stage 13. His pension was fixed at this amount. उसका डीएनआई ये था, तो फिक्स इज पे एंड डीए। यहाँ पे इस केस में हम देखें, यहाँ पर अगर हम इस केस को कंसीडर करें तो वी विल फाइंड दैट ही हैज ज्वाइंड आफ्टर रिटायरमेंट टेक्निकल रेजिग्नेशन। 52 के एज पे उसने किया है, क्लास 1 ऑफिसर था, फर्स्ट ग्रुप ए में था, उसके पोस्टिंग फर्स्ट पे था। ठीक है, वेदर डीए वाज अलाउड ऑन पे फिक्स, यस डीए विल बी अलाउड। वेदर डीएनआई इज एप्लीकेबल ऑन न्यू पोस्ट, डीएनआई का डेट, पुराने डीएनआई का डेट नहीं कंसीडर होगा, नया डीएनआई डेट फिक्स होगा, बिकॉज वो हायर स्टेज पे जा रहा है। अगर हायर स्टेज पे नहीं जाता तो नहीं होता। पे प्रोटेक्शन मिलेगा कि नहीं? यस, पे प्रोटेक्शन मिलेगा। एंड इग्नोरेबल पोर्शन ऑफ पेंशन, यस परमिट होगा, बिकॉज 52 ईयर्स के पहले वो एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके दूसरे पे जा रहा है। तो यहाँ पे देखें हम, व्हेन रिटायर्ड ही वाज इन पे लेवल 12, his last pay was this, his pension was this, and DR was allowed on this amount. जब री एम्प्लॉयड हुआ, पेंशन ही विल बी गेटिंग, उसको ऑप्शन है, हम प्रिज्यूम कर रहे हैं वो यहां नहीं ले रहा है, बिकॉज मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि लोग अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से डीआर नहीं ड्रॉ करते हैं। तो यस दिस इज नील। नाउ न्यू पे कैसे फिक्स होगा, ये गौर करने वाली बात है। न्यू पे सबसे पहले कि इसको प्रोटेक्ट करके हम फिक्स करेंगे। He was drawing 1,12,400 rupees in level 12. Level 13 begins with 1,23,100 rupees. So automatically this is protected here. अगर level 13 को हम यहाँ देखें, level 13 को देखें तो 123,100 से ये begin ही कर रहा है, ये begin कर रहा है। सो कोई पे प्रोटेक्शन का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे प्रोटेक्शन का क्वेश्चन नहीं है। हम सपोज करें कि यहाँ पे दिस पे
was something like 1,40,000 rupees. Then in that case 1,40,000 rupees को हमको प्रोटेक्ट करना होता, और प्रोटेक्ट करना होता हायर स्टेज में जहां की उसका फिटिंग था, बिकॉज पे लेवल हायर पे वो जा रहा है, यहाँ पर्सनल पे के रूप में पे प्रोटेक्ट नहीं है। सो अगर 140 हो रहा होता तो हम एग्जांपल में देखें क्या होता। 140 हो रहा होता तो उसका पे किस दो लेवल के बीच में आता, 138 एंड 140 इसके बीच में आता, एंड इसमें हायर स्टेज पे हम प्लेस करते 142,700 होता। बट हियर द केस इज डिफरेंट, here the case is different, and minimum of the scale is more than what he was drawing, so this will be his pay. अब इस पे में से this pension will be deducted, and this 15,000 rupees add कर दिया, बिकॉज इसमें से इतना कम डिडक्ट होना था, सो 15,000 रुपीज बैक ऐड कर दिया, इग्नोरेबल पोर्शन ऑफ पेंशन, इग्नोरेबल पोर्शन ऑफ पेंशन, बिकॉज दिस इग्नोरेबल पोर्शन ऑफ पेंशन, जैसा कि मैंने यहां लिखा हुआ है, was permitted to him because he has left the organization before the age of 52. ठीक है, उसको जो सारे बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, डीए एंड सारे बेनिफिट्स, सारे अलावेंस, ये 1,23,000 इस अमाउंट पे ही मिलते रहेंगे। उसका नेक्स्ट डीएनआई क्या होगा? नेक्स्ट डीएनआई जिस डेट को वो री एम्प्लॉयड हुआ है उस डेट से 6 महीने के बाद का होगा। सो इससे 6 महीने के बाद का जो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट आ रहा है वो 1 जुलाई 23 आ रहा है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में इन सारी चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है, प्रोटेक्शन को डीएनआई कैसे डिसाइड करते हैं उसको, जिन्होंने नहीं देखा है काइंडली रिफर टू दैट। सो डीएनआई इस तरह से उसका फिक्स हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट सर्वेंट, सेम क्वेश्चन है, 57 ईयर्स की एज में यदि छोड़ता है, ऑल दोज थिंग्स आर सेम, तो सब कुछ सेम रहेगा। 57 इयर्स के एज में छोड़ने के बाद सब कुछ सेम रहेगा। सिंपली देखिए, यहां इग्नोरेबल पोर्शन 15,000 उसको अलाउ किया गया था, नेक्स्ट में इग्नोरेबल पोर्शन का कंपोनेंट नहीं है, दैट्स वाई यहां उसकी सैलरी 66,900 पे फिक्स हो रही है, वहां उसकी सैलरी 81,900 पे फिक्स हो रही है। इग्नोरेबल अलाउ होने के कारण, इग्नोरेबल पोर्शन ऑफ पेंशन अलाउ होने के कारण उसकी सैलरी यहां पे बढ़ जा रही है। रेस्ट एवरीथिंग इज द सेम, रेस्ट एवरीथिंग इज द सेम। सो इसको बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही इसको समझे, पढ़ेंगे एक बार तो समझ जाएंगे। यहाँ पे नो इग्नोरेबल पोर्शन है, यहाँ पे देख ले नो इग्नोरेबल पोर्शन, तो इग्नोरेबल पोर्शन नहीं है, दैट्स वाई सैलरी उसकी रिड्यूस्ड आ रही है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट सर्वेंट 52 इयर्स के एज के बाद, यहां देखिए एक ही एग्जांपल पूरे के पूरे ये में 2 एग्जांपल मैंने लिए हैं एनपीए के साथ, बिकॉज आई गॉट सम रिक्वेस्ट कि सर एनपीए का भी कोई ना कोई केस जरूर एक्सप्लेन कीजिए, तो एनपीए के साथ लिया है, और एक बड़ा टिपिकल केस एनपीए का लिया है। ये पर्सन इज मूविंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ए टू बी, ए में एनपीए एप्लीकेबल है, बी में एनपीए एप्लीकेबल नहीं है, तो क्या होगा? और ए में एनपीए एप्लीकेबल है, बी में भी एनपीए एप्लीकेबल है, तो क्या होगा? लेट्स सी। अ गवर्नमेंट सर्वेंट submits his technical resignation at the age of 52, at the age of 52, joins the new organization as re-employed pensioner on this date in pay level 13. Rest of the problem पिछले के जैसा ही है, last salary was this much, pay level 12 में स्टेज 13 पे था, ये एक न्यू एडिशन है। वाज ड्रॉइंग एनपीए ऑफ दिस मच अमाउंट, एनपीए जो है 7 सीपीसी में एनपीए 25% ऑफ द बेसिक होता है, सो इसका 20% ऑफ द बेसिक होता है, तो इसका 20% वो एनपीए में पा रहा था। एनपीए क्यों मिलता है? नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। किसी भी प्रोफेशनल को वो प्रोफेशनल प्रैक्टिस सर्विस के बाद ना करे, इसके लिए कंपनसेशन दिया जाता है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस कहते हैं इसको। मैक्सिमम इट इज गिवन टू डॉक्टर्स, एंड एक चीज और यहां पे ध्यान देंगे, डॉक्टर्स को ये मैक्सिमम दिया जाता है, एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करता है, कई जगह दूसरे प्रोफेशनल्स को भी दिया जाता है मार्केट प्रैक्टिस डेटर करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए। सो इस पैटर्न पे उसका पूरा का पूरा पे फिक्स होता है। हम देखें यहाँ पे कैसे होता है।
सो यहाँ री इम्प्लाइड हो रहा है आफ्टर रिटायरमेंट, टेक्निकल रेजिग्नेशन दे रहा है, सबमिटिंग टेक्निकल रेजिग्नेशन, एज 62 ईयर्स है, सो इग्नोरेबल पोर्शन ऑफ पेंशन की बेनिफिट मिलेगी, क्लास 1 में है, बिकॉज डीए या डीए की बेनिफिट उसको, डीए सारी बेनिफिट्स उसको मिलेगी, सुपर एनुएटेड नहीं है, बिकॉज डीएनआई विल बी एप्लीकेबल, लेकिन यहाँ पे हायर स्टेज पे जा रहा है, डेट डीएनआई डिसाइड करने में उसकी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगी। इग्नोरेबल पोर्शन ऑफ पेंशन, यस, इग्नोरेबल पोर्शन ऑफ पेंशन उसको परमिटेड होगा, 62 के एज के पहले जा रहा है। पे लेवल 12 में दिस वाज हिज पे, दिस वाज हिज इग्नोरेबल, दिस वाज हिज एनपीए, सॉरी दिस वाज हिज एनपीए। उसका जो पेंशन फिक्स हुआ, गौर कीजिएगा, इसका 50% नहीं है, पेंशन हमेशा टोटल पे का 50% होता है। टोटल पे हैव 3 components, बेसिक पे प्लस पर्सनल पे प्लस एनपीए, सो दिस प्लस दिस का 50% है, ठीक है। सो दिस पेंशन एंड डीआर जो था इस पेंशन पे या परमिटेड था उसको, द मोमेंट हिज पे इज फिक्स्ड, पेंशन सेम रहा, डीआर का ऑप्शन उसका रुक गया, डीआर का ऑप्शन रुक गया, बिकॉज मैक्सिमम दिस ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड, डीआर का ऑप्शन लोग पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं लेते हैं, डीआर का ऑप्शन रुक गया। अगर वो वहां लेंगे तो यहाँ डीए की बेनिफिट उनकी सीज हो जाएगी सेम ए पे, इसलिए लोग डिस्करेज करते हैं, नहीं लेते हैं उसको, ज्यादा बड़ा लॉस हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए बेसिक पे, जब नए पे गए पे लेवल 13 पे, तो इससे ज्यादा स्टेज पे उनका पे फिक्स होगा, बेसिक पे, ठीक है। ये गौर कीजिएगा कि प्रोटेक्ट हमेशा बेसिक पे होता है, तो बेसिक पे इससे ज्यादा वाले स्टेज पे गया, और चूंकि ज्यादा था तो कोई दूसरे प्रोटेक्शन का सवाल नहीं था, लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। अब यहाँ पे इनका जो पेंशन था पूरा का पूरा पेंशन माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसमें से 15,000 रुपीज इग्नोरेबल पोर्शन ऑफ पेंशन उनका ऐड हो जाएगा, जैसे कि हमने इसके लास्ट प्रॉब्लम एक्सरसाइज नंबर 11 में किया था, और ये फिक्स होने के बाद 70,500 रुपीज अमाउंट कम्स आउट टू बी, यहाँ पे फिक्स हो जा रहा है। अब देखिए एनपीए जो हो रहा है, उनका एनपीए रिफिक्स हो रहा है यहाँ पे जो ये एनपीए था इस अमाउंट पे था, बिकॉज नए ऑर्गेनाइजेशन में एनपीए है और वो एग्री किया कि एनपीए देगा, सो यहाँ एनपीए उनका फिर से फिक्स होगा 1,23,000 रुपीज पे, 20%, दिस कम्स आउट टू बी 24,600 रुपीज। फ्यूचर इंक्रीमेंट्स उनको मिलते रहेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंगली एनपीए में भी चेंज होता रहेगा, ये गौर करेंगे। एनपीए हर इंक्रीमेंट के बाद एनपीए चेंज होता है, 25% 20% जाता है, तो एनपीए विल बी चेंजिंग, अगले इंक्रीमेंट के बाद फिर उनका एनपीए चेंज होगा, बेसिक पे के हिसाब से फिर 20% हो जाएगा, तो फ्यूचर इंक्रीमेंट मिलेगा, एनपीए चेंज होता रहेगा। डियरनेस अलाउंस देखिए कितने पे मिलेगा, डियरनेस अलाउंस हमेशा पे मिलता है, विच इंक्लूड्स बेसिक पे प्लस एनपीए, पर्सनल पे तो कुछ है नहीं, प्लस एनपीए, सो इन दोनों को टोटल करके जो अमाउंट आएगा डियरनेस अलाउंस यहाँ मिलेगा। यहाँ मैंने डीएनआई नहीं लिखा है, डीएनआई जैसे पहले प्रॉब्लम में था सेम डेट, बिकॉज क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, उसी तरह से डीएनआई 1 जुलाई 24 से उनको मिलना शुरू हो जाएगा। सो this is this problem. Now I'm discussing the last problem, इसके बाद कुछ और स्पेशल केसेस देखेंगे हम लोग। लास्ट प्रॉब्लम, इस लास्ट प्रॉब्लम में 13th प्रॉब्लम में ये 12th प्रॉब्लम की ही कॉपी है, केवल एक चेंज है, एनपीए इज नॉट एप्लीकेबल इन नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एनपीए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, और जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जहां वो ज्वाइन कर रहे हैं उसने कहा है कि हम एनपीए को पर्सनल पे के रूप में प्रोटेक्ट कर देंगे। अगर ना भी मेंशन किया हो तो एनपीए को प्रोटेक्ट करना ही होगा, क्योंकि क्या होगा, एनपीए को क्यों प्रोटेक्ट करना होगा, बिकॉज जैसे ही अगर पिछला प्रॉब्लम आप फेस हैं, तो जैसे ही उसके लास्ट पे में एनपीए को ऐड करेंगे, जो अगले लेवल का मिनिमम, अगले पे लेवल का मिनिमम स्टेज है उससे ज्यादा हो जाएगा, 1,12,400 और 1,20,000 प्लस 22,800, so this will be come out to be
1,45,200 रुपीज, तो ऑलरेडी इससे ज्यादा हो जा रहा है, तो आपको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा उसको किसी भी हालत में। ठीक है, 1,45,200 रुपीज, तो आपको प्रोटेक्ट करना ही है। तो वो प्रोटेक्शन जब भी होगा तो पर्सनल पे के रूप में होगा यहाँ, बिकॉज एनपीए इज नॉट एप्लीकेबल देयर। अब इसमें लॉस होता है पर्सनल पे के रूप में जब प्रोटेक्ट होता है, बिकॉज फ्यूचर इंक्रीमेंट के साथ ये एनपीए, ये पर्सनल पे बढ़ता नहीं रहेगा, फ्यूचर इंक्रीमेंट के साथ ये एडजस्ट होता रहेगा। वहां फ्यूचर इंक्रीमेंट के साथ एनपीए बढ़ता भी चला जा रहा था एवरी इंक्रीमेंट के बाद। सो दैट इज द डिफरेंस। सो यहाँ पे क्या होगा, सेम प्रॉब्लम है, आफ्टर रिटायरमेंट वो ज्वाइन कर रहे हैं, सुपर एनुएशन एज से पहले है, 52 पे है, ग्रेड पे 1 था उनका, ये 52 पे ही थे, सो इग्नोरेबल पोर्शन ऑफ पेंशन उनको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद डीए मिलेगा कि नहीं, यस डीए मिलेगा। डीएनआई की बेनिफिट, हायर इंक्रीमेंट है, डीएनआई में कोई चेंज नहीं होगा, हायर इंक्रीमेंट पे फिक्स होगा, उसके 6 मंथ के बाद डीएनआई जाएगा। तो यहाँ फिर से लास्ट प्रॉब्लम की तरह ही डीएनआई जो उनका होगा 1 जुलाई से हो जाएगा। बेसिक पे, बेसिक पे देखिए यहाँ पे 1,23,000 रुपीज है, इसमें से हमने पेंशन को माइनस किया, इग्नोरेबल पोर्शन को ऐड किया, सो दिस कम्स आउट टू बी द सेम। यहां लास्ट टाइम के जैसा ही फिक्सेशन है, जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है, वहां पे इग्नोरेबल पोर्शन था, यहाँ पर्सनल पे। और पर्सनल पे के रूप में देखिए लास्ट जो भी वो ड्रॉ कर रहे थे, इसका सम निकालेंगे 1,45,200 रुपीज, उसमें से जहां पर उनका पे फिक्स हुआ दिस अमाउंट, उसको माइनस किया, इतने को 12,100 रुपीज को हमने पर्सनल पे के रूप में प्रोटेक्ट कर दिया, एंड दैट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट फ्यूचर इंक्रीमेंट। अगले इंक्रीमेंट के बाद ऑलमोस्ट अगला इंक्रीमेंट 4,000 के आसपास का, 4,000 के आसपास होगा, तो 4,000 रुपीज यहाँ पे करीब करीब जो भी हो ऐड हो जाएगा, यहाँ 4,000 रुपीज माइनस हो जाएगा। सो नेक्स्ट ईयर दिस विल इंक्रीज बाई 4,000 रुपीज एंड दिस विल रिड्यूस बाई 4,000 रुपीज, पर्सनल पे घटता चला जाएगा। तो एक तरह से ये समझा जाए कि वो जो लास्ट सैलरी पा रहे हैं वो सैलरी सेम पाते रहेंगे जब तक उनका यहाँ का बेसिक पे, यहाँ के बेसिक पे प्लस एनपीए के बराबर नहीं हो जाता है, या जब तक ये पर्सनल पे रिड्यूस होके 0 नहीं हो जाता है, उसके बाद ही वो उनको यहाँ के इंक्रीमेंट का समझा जाए तो रियल में बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे डीए किस अमाउंट पे मिलता है, अगेन डीए जो पे वो लास्ट पा रहे थे जिसको हमने प्रोटेक्ट किया है उसके ऊपर मिलेगा। सो यहाँ देखिए लास्ट प्रॉब्लम से क्या क्या डिफरेंस है। पहला है यहाँ प्रोटेक्शन एनपीए के रूप में हो रहा था, दूसरा है यहाँ डीए जो मिल रहा था वो पे प्लस एनपीए पे मिल रहा था। ठीक है, पे प्लस एनपीए पे मिल रहा था, यहाँ पे जो मिल रहा है डीए उनका पे प्लस एनपीए पे, यहाँ भी पे प्लस पर्सनल पे यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन द डिफरेंस इज देखिए वो यहाँ 1,35,200 है, जबकि 1,47,700 है, बिकॉज यहाँ पे एनपीए पूरा का पूरा इसका 20% एडिशनल ऐड हो गया था, सैलरी उनकी बढ़ गई थी। सो दैट इज द डिफरेंस। सो अगर एक एनपीए पा रहा पर्सन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जहां एनपीए नहीं है वहां जाता है, देन ही सफर्स लॉसेस। नेक्स्ट देखें, कुछ जनरल कंसेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। नेक्स्ट, फी एंड ऑनरेरियम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। डिफरेंस जो है पॉइंट नंबर 3 एंड 4 में है, बोथ कैन बी रेगुलर और इंटरमिटेंट, बट ऑनरेरियम कैन नॉट बी पेड इनडायरेक्टली, जो ऑर्गेनाइजेशन लेगा वही ऑनरेरियम पे करेगा। फी के केस में यह भी हो सकता है कि हायर ऑर्गेनाइजेशन ए ने किया हो, हायर फॉर ऑर्गेनाइजेशन बी हो तो ऑर्गेनाइजेशन बी उसको पे करे, लेकिन ऑनरेरियम के केस में ऐसा नहीं होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन सर्विस लेगा वो ऑर्गेनाइजेशन ही पे करे। बोथ रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, कोई डाउट नहीं है। ऑनरेरियम इज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड वेयर फी इज फ्रॉम एनी सोर्स, फी किसी भी सोर्स से पे हो सकता है। सो कहने का मतलब है हमने अगर कोई प्रोजेक्ट लिया हुआ है, कहीं कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट मिला हुआ है, उसे किसी पर्सन को पे कर रहे हैं तो वो फी कहलाएगा। ऑनरेरियम कैन बी पेड फॉर आरडीएस ड्यूटी इन्वॉल्विंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिट, ये मेजर डिफरेंस है। यदि ड्यूटी आरडीएस है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिट को इन्वॉल्व करती है, बहुत मेहनत की ड्यूटी है,
और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिट है उसमें जो नॉर्मल मेरिट से डेविएट कर रहा है तो ऑनरेरियम मिलेगा। अदरवाइज यदि ड्यूटी इज एडिशनल तो फी मिलेगा। जैसे किसी पर्सन को एबनॉर्मल आवर्स में काम करना है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ डेज, उसको फी परमिट किया जा सकता है, ऑनरेरियम परमिट नहीं किया जाएगा, सेम ड्यूटी को अगर वो ज्यादा आवर तक कर रहा है। ऑनरेरियम इज एसेंशियली फिक्स्ड इन एडवांस। फी में ऑनरेरियम का अमाउंट एसेंशियली फिक्स किया जाता है, फी को रेट के फॉर्म में भी फिक्स किया जा सकता है, पर डे इतना, पर आवर इतना, इट में हैपन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्लाइड। इफ अ पर्सन इज मूविंग फ्रॉम गवर्नमेंट टू पब्लिक सेक्टर और वाइस वर्सा, यहाँ पे एक डिफरेंस है एंड दैट वन इज वेरी इंटरेस्टिंग। गवर्नमेंट डिस्करेज करती है गवर्नमेंट से किसी को पब्लिक सेक्टर में जाने और वहां एब्जॉर्व करने। डेपुटेशन पे जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉरी डेपुटेशन तो होगा ही नहीं पब्लिक सेक्टर में, फॉरेन सर्विस होगा, फॉरेन सर्विस पे जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमानेंटली जाना डिस्करेज करती है। दैट्स व्हाई द रूल इज his pay will not be protected in the प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में उसको पे प्लस डीए जितना, बिकॉज दोनों का पे स्ट्रक्चर भी डिफर करता है, पे प्लस डीए जितना मिल रहा था, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू और हायर देन व्हाट ही विल ड्रॉ इन द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट में काम करते हुए पे एंड डीए कभी भी कम नहीं हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में जितना पे एंड डीए उसको मिलेगा। यानी कि प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा नहीं मिल सकता है गवर्नमेंट सेक्टर से, अगर ज्यादा मिल रहा है तो ये परमिट ही नहीं होगा, टेक्निकल रेजिग्नेशन, एंड ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इफ नो मैचिंग स्केल इज अवेलेबल, यहाँ हो तो ये भी हो सकता है ना कि मैचिंग स्केल नहीं हो तो हायर स्टेज पे ले जाकर के नहीं ये प्रोटेक्ट होगा, पर्सनल पे के रूप में प्रोटेक्ट होगा। ये प्रोटेक्शन जब भी होगा पर्सनल पे के रूप में होगा, हायर स्टेज पे ले जाके इसका कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है। सो पे प्लस डीए दोनों जगह का मैच किया जाता है। कहां मैच कर रहा है, जहां भी मैच कर रहा होता है, अगर मैच कर रहा है तो वेल एंड गुड, मैच नहीं कर रहा है तो जहां पर पे प्लस डीए पब्लिक सेक्टर का कम आ रहा है गवर्नमेंट वाले से, उसी में पर्सनल पे के रूप में उसको प्रोटेक्ट करते हुए पे फिक्सेशन कर दिया जाता है पब्लिक सेक्टर। लेकिन यदि कोई डायरेक्टली रिक्रूट हो रहा है गवर्नमेंट में पब्लिक सेक्टर से या कहीं और से भी, अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इस केस में क्या होगी, हम ध्यान देंगे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किसको कहते हैं? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की कुछ कंडीशंस हैं। द हायरिंग विल बी फ्रॉम ओपन मार्केट, यानी उसका ओपन एडवर्टीजमेंट हुआ होना चाहिए। मतलब किसी एक पर्सन को हमने इंटरव्यू के लिए बुला लिया और उसका जस्ट हमने सिलेक्शन कर दिया, तो वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के केस में हमेशा पोस्ट एडवर्टाइज होगा, कोई भी अप्लाई कर सकता है, एंड एक प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस होगा, माइट बी इंटरव्यू, माइट बी रिटन एग्जामिनेशन, वट एवर इट इज, ये होगा। सो इस केस में यदि कोई भी आदमी बाहर से गवर्नमेंट में ज्वाइन करता है और सम मिनिमम नंबर ऑफ एक्सपीरियंस ईयर्स और मिनिमम नंबर ऑफ experience, if it is mentioned minimum number of qualities in experience years, minimum number of experience यदि mention है उसके एलिजिबिलिटी में, तो उस पर्सन को पे प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, इसमें मैटर नहीं करता है कि सिलेक्शन इंटरव्यू से हुआ हो, ओपन कंपटीशन से हुआ हो, कैसे भी हुआ हो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में दोनों बिकॉज कवर होते हैं, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस हमने स्पेसिफाई किया हुआ है तो उसको पे प्रोटेक्शन मिलेगा, इवन इफ ही इज कमिंग फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे भी जो पे प्रोटेक्शन होता है, पे प्लस डीए को प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड अगेन पे प्रोटेक्शन जो यहाँ दिया जाता है, यहाँ पर जो पे प्रोटेक्शन दिया जाता है, अगेन दिस इज इन द शेप ऑफ पर्सनल विदहोल्डिंग इंक्रीमेंट। इफ नो एमएससीपी इज फॉर 20 years, कोई ऐसा आदमी है जिसको कि 20 years तक प्रमोशन भी नहीं हुआ और एमएससीपी भी नहीं मिल रहा है, एमएससीपी की मीटिंग्स में दे रहे हैं, बिकॉज ऑफ सम रीजन उसको एमएससीपी नहीं मिल रहा है, तो उसका फ्यूचर इंक्रीमेंट रुक जाएगा।
and this is not as a punishment but inability to cross efficiency bar. हालांकि 7 सीपीसी में कोई इफिशिएंसी बार के बाद में कोई ये नहीं दिया है कि अगर इफिशिएंसी बार क्रॉस किया तो ये इंक्रीमेंट मिलेगा, लेकिन इसको ये माना जाता है कि वो इफिशिएंसी बार को क्रॉस नहीं कर रहा है अगर 20 साल तक उसको एमएससीपी नहीं मिल रहा है, और ये माना जाएगा कि उसके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। सो उसका अगला इंक्रीमेंट एमएससीपी के बाद ही लगेगा या प्रमोशन के बाद लगेगा, अदरवाइज इंक्रीमेंट रुक जाएगा। द नेक्स्ट इज, परहैप्स दिस इज द लास्ट point, option of pay fixation from DNI if the promotion is ad hoc। तो सबसे पहले थोड़ा सा देखें व्हाट इज एड हॉक प्रमोशन। कोई एक पोस्ट है जो वैकेंट है और बिकॉज ऑफ सम डेफिनिट रीजन है कि आज की तारीख में कोई आदमी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एलिजिबल नहीं है, तो एड हॉक प्रमोशन पे या एड हॉक पोस्टिंग पे हम दूसरे जगह से बुला लेते हैं। या ये भी हो सकता है कि कोर्ट ने कहा हुआ हो कि भाई सीनियरिटी इज डिस्प्यूटेड मैटर, यहां भी किसी की पोस्टिंग नहीं करोगे, तो परमानेंट प्रमोशन देने के बजाय एडहॉक प्रमोशन दे दिया जाता है। कई बार आपका रिक्रूटमेंट रूल वगैरह अंडर रिवीजन होता है, तो इन दैट केस ऑल्सो जो उस समय एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट रूल होता है उसके हिसाब से एडहॉक प्रमोशन दे दिया जाता है। एडहॉक मीन प्रोविजनल, टेम्पोररी, जो बाद में विड्रॉ भी हो सकता है। तो यदि एडहॉक पोस्ट पे किसी का प्रमोशन हो रहा है तो पे फिक्सेशन ऑन डीएनआई की बेनिफिट उसको नहीं मिलती। लेकिन यदि बाद में वही आदमी रेगुलरली प्रमोट हो जाता है विदाउट एनी ब्रेक, कहने का मतलब है कोर्ट ने कहा हुआ था कि सीनियरिटी डिस्प्यूटेबल है, पर्सन ए को हमने एडहॉक प्रमोशन पे एक पोस्ट पे ला दिया, बाद में कोर्ट ने जब कहा कि हाँ सीनियरिटी ये होनी चाहिए और उस सीनियरिटी के बाद भी पर्सन ए ही एलिजिबल हो रहा है उस प्रमोशन के लिए और वही प्रमोट हो रहा है, तो उसको डीएनआई की बेनिफिट मिलेगी। कहां से मिलेगी? एडहॉक प्रमोशन पे जब वो गया था तब से मिलेगी। एक पॉइंट समझने वाली बात, ये है एडहॉक प्रमोशन और ये है रेगुलर प्रमोशन। ये है रेगुलर प्रमोशन, ठीक है। रेगुलर प्रमोशन यहां के बाद से था, सो होना तो ये चाहिए था कि रेगुलर प्रमोशन जिस दिन उसका हुआ उसी दिन से डीएनआई की बेनिफिट मिलती, लेकिन यहां देख रहे हैं कोई ब्रेक नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है। ब्रेक नहीं होने की वजह से ये जो डीएनआई की बेनिफिट है एडहॉक प्रमोशन जब से बिगिन हुआ था उसी डेट से चालू हो जाएगा। सो कहने का मतलब है जिस समय वो एडहॉक प्रमोशन जाएगा उस समय तो डीएनआई की बेनिफिट नहीं मिलेगी उसको, लेकिन द मोमेंट वो रेगुलर हो जाता है उसी पोस्ट पे उसको डीएनआई की बेनिफिट डेट ऑफ एडहॉक प्रमोशन से ही मिलेगी। सो दीज आर द प्रोविजंस जो कि मैं आज डिस्कस करना चाहता था। ये कुछ और है छोटी चीजें, बेनिफिट्स अलाउड ऑन डेपुटेशन एंड फॉरेन सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है, बेनिफिट्स क्या क्या अलाउड है और बड़ा डिस्प्यूटेबल चीज है, कई बार इस पे केसेस भी आते हैं। प्रोजेक्ट अलावेंस, अगर कुछ भी मिल रहा है नए पोस्ट पे उसको मिलता रहेगा। स्पेशल अलावेंस मैंने अपने फर्स्ट सेशन में एक्सप्लेन किया हुआ है, स्पेशल अलावेंस क्या होता है या स्पेशल पे क्या होता है। अगर किसी पोस्ट को करने के लिए किसी स्पेशल मेरिट की जरूरत है तो जो कोई उस पोस्ट पे आएगा उसको वो मिलेगा, दैट इज कॉल्ड स्पेशल पे। सो यदि स्पेशल पे परमिटेड है उस पोस्ट के लिए वो उसको मिलता रहेगा। प्रोजेक्ट अलावेंस, यदि किसी प्रोजेक्ट में जा रहा है वहां का कोई अलावेंस है तो उसको मिलता रहेगा। लेकिन कोई भी अलावेंस जो उसको पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में मिल रहा था वो न्यू ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलेगा जब तक कि यहां भी वो परमिटेड ना हो। इस चीज को गौर से समझेंगे। इफ अ पर्सन वाज ड्रॉइंग एनपीए और इन ऑर्गेनाइजेशन जहां वो जा रहा है एनपीए नहीं है तो उसको एनपीए नहीं मिलेगा। उसके इस पे को प्रोटेक्ट किया जा सकता है पर्सनल पे के फॉर्म में विच विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द फ्यूचर इंक्रीमेंट, लेकिन यहां पे उसको एनपीए नहीं मिलेगा किसी भी हालत में। सिमिलरली कोई भी दूसरा अलावेंस, वहां अगर कोई प्रोजेक्ट अलावेंस मिल रहा था, स्पेशल अलावेंस मिल रहा था जो कि न्यू पोस्ट पे एप्लीकेबल नहीं है तो नहीं मिलेगा। वो
प्रोटेक्ट भी नहीं होगा दूसरा अलावेंस। एनपीए का केस मैंने इसलिए कहा बिकॉज वो पे का पार्ट हो जाता है, पे इज प्रोटेक्टेड, सो वो इसका एक पार्ट हो जाता है। कंपल्सरी अलावेंस, ठीक है, कंपनसेटरी अलावेंस, दिस इज टू कंपनसेट द पर्सनल एक्सपेंसेस व्हाइल परफॉर्मिंग ड्यूटीज। कोई भी ड्यूटी करते हुए जो पर्सनल एक्सपेंसेस जेब से होते हैं उसके लिए है ये इसके अंतर्गत टीए आता है, ट्रेवल अलावेंस, ऑफ कोर्स टीटीए भी आएगा, एलटीसी नहीं आएगा। एलटीसी इज स्पेशल अलावेंस, एक अलग तरह का अलावेंस है। सीसीए, सिटी कंपनसेटरी अलावेंस, पहले जो मिला करता था। रिमोट एरिया अलावेंस, दिस कम्स अंडर दैट। लेकिन डियरनेस अलावेंस या स्टम्पटरी अलावेंस, स्टम्पटरी अलावेंस क्या होता है, जैसे कुछ पोस्ट के लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है, आपको करना होता है। जैसे मिलिट्री के कुछ पोस्ट होते हैं जहां मूछ रखना जरूरी है, उसके लिए एक अलावेंस उनको मिलता है। तो दिस काइंड ऑफ अलावेंस ये इसमें नहीं आते, ठीक है। सो पर्सनल एक्सपेंस जो होता है मीट आउट करना होता है, या कोई ड्रेस कोड हो उसके लिए जो अलावेंस है, दीज आर स्टम्पटरी अलावेंस। सो ये सारे नहीं मिले, ये सारे कंपनसेटरी नहीं काउंट होते हैं। ये डेफिनेशन फंडामेंटल रूल्स में। एडवांस इंक्रीमेंट, एडवांस इंक्रीमेंट एक तो समझ जाए, एडवांस इंक्रीमेंट जब भी दिया जाएगा तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है, सॉरी, पोस्ट क्रिएटिंग अथॉरिटी के द्वारा दिया जाएगा, नॉट बाई अपॉइंटिंग। द पर्सन हु हैज क्रिएटेड दैट पोस्ट वही दे सकता है, पहली चीज। अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने, द पर्सन हु हैज क्रिएटेड द पोस्ट, फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग, दिस इज नॉट अ प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट जो कि किसी मेरिटोरियस काम के लिए या डेपुटेशन अलावेंस में कुछ लॉस हो रहा है इन सब चीजों के लिए दिया जाए। ये एक अलग काइंड का इंक्रीमेंट है जो कि पोस्ट क्रिएटिंग अथॉरिटी के द्वारा उन लोगों को दिया जाता है जिनके बारे में ये माना जाता है कि उनको हायर स्केल पे लिया जाना जरूरी। तो उस हायर स्केल को, उस हायर स्टेज को एडवांस इंक्रीमेंट के रूप में दिया जाता है। जैसे कि आईएएस को एडवांस इंक्रीमेंट मिलता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक एन साइंटिस्ट इन आईसीआर दे गेट एडवांस इंक्रीमेंट। एक चीज और ध्यान देंगे, वंस यू ज्वाइन द पोस्ट और आपका पे फिक्स हो गया तो ड्यूरिंग द सर्विस एडवांस इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। कहने का मतलब है कि मैंने स्टेज 5 पे ज्वाइन किया, नाउ आई एम इन स्टेज 9, तो पोस्ट क्रिएटिंग अथॉरिटी भी स्टेज 9 पे मेरे को नहीं दे सकता है, बिकॉज वो कोई मेरिटेरियस जॉब के लिए या लॉस ऑफ डिपुटेशनल अलावेंस या किसी और चीज के कंपनसेशन के लिए नहीं। वो बेसिकली है हायर मेरिट को अट्रैक्ट करने के लिए, हायर एक्सपीरियंस्ड पर्सन को इंडक्शन लेवल पे अट्रैक्ट करने के लिए। सो एडवांस इंक्रीमेंट इन केसेस में दिए जाते हैं। इवन मुझे जहां तक आइडिया है कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स इन स्टेट बैंक आल्सो दे गेट एडवांस इंक्रीमेंट। सो दैट वाज द टोटल प्रेजेंटेशन। मेरा एक और वीडियो आई एक्सपेक्ट पे फिक्सेशन पे, लास्ट वीडियो आई विल बी शेयरिंग, और दैट मे बी द पार्ट ऑफ द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जिस पे कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, माइट बी कि वहीं कवर करूँ उसको, जिसमें कि होगा पनिशमेंट के बाद हाउ द पे, जब वो पर्सन रीइंस्टेट होता है तो हाउ हिज पे इज फिक्स्ड, या सब्सिस्टेंस अलाउंस कैसे मिलता है, कैसे इंक्रीज होता है, वो एक पोर्शन मैं और कवर करूंगा। दैट विल कवर द टोटल इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पे फिक्सेशन। इंपॉर्टेंट नहीं, इलेबोरेटेड पार्ट यू कैन से, क्वाइट डिटेल डिस्कशन 3 सेशंस में हुए हैं। So thank you very much. If you have any query, your queries are welcome. Once again, thank you for your patient listening of these videos. Thanks. Thanks a lot.